ویو 360 میں امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھارت میں طبی عملے کے لیے ذاتی تحفظ کے لباس یا پی پی ای میں کام کرنا کتنا مشکل ہے؟ اور مستقبل قریب میں اپنا کلون بنوانا شاید ایک خواب نہ رہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 شو کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری۔ میرے پیچھے آپ دنیا کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس نقشے پر جہاں بھی موجود ہیں، ہماری سروس اپنے ٹی وی، ریڈیو اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے شوز کے ذریعے خبریں اور معلومات آپ تک پہنچاتی ہے۔ اسمارٹ فون پر VOA اردو کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ چلیے آج کے شو کا باقاعدہ آغاز امریکہ اور چین کے بڑھتے تناؤ کی خبر سے کرتے ہیں۔ امریکہ نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف بڑے پیمانے پر جاسوسی کارروائیوں کے علاوہ امریکی املاک دانش یا انٹلیکچوئل پراپرٹی بھی چوری کر رہا ہے، جس کے بعد امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں موجود چینی قونصل خانے کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام کے بعد چین نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ڈرامائی طور پر کشیدگی میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیوسٹن میں چینی قونصل خانے کو بند کرنے کے لیے 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا۔ یہ امریکی حکم نامہ اس وقت آیا جب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ڈنمارک کا دورہ کر رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس اقدام کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ ہم نے دراصل اس بارے میں بات کی ہے۔ یہ صرف چوری کی گئی امریکی املاک دانش کے بارے میں ہی نہیں بلکہ یورپی املاک دانش سے متعلق بھی ہیں، جس سے یورپ اور امریکہ کے لاکھوں محنتی افراد کو اپنے روزگار سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں، جسے چینی کمیونسٹ پارٹی نے چرایا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ یہ چوری ایک طویل عرصے سے جاری تھی اور چین کو اس کا جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم اس کو جاری رہنے نہیں دیں گے۔ چین نے اس کا فوراً جواب دیا ہے۔ چین اس اقدام کی شدید مذمت کرتا ہے اور زور دیتا ہے کہ امریکہ اس فیصلے کو واپس لے۔ بصورت دیگر چین لازماً اس کا مناسب جواب دے گا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی توقع نہیں کرتے، لیکن انہیں توقع ہے کہ چین اس کا جواب دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ووہان میں امریکی قونصل خانے کو بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ چینی امریکیوں کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہم نے بظاہر بیجنگ کو صرف 72 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ ویڈیو رپورٹس میں دکھایا گیا کہ ہیوسٹن میں قونصل خانے کو بند کرنے کی خبر آتے ہی عمارت کے اندر آگ لگ گئی، جو بظاہر چینی ملازمین کی طرف سے دستاویزات کو جلدی سے تباہ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو نے کہا کہ ہیوسٹن قونصل خانے کی بندش ضروری ہے۔ ان کے مطابق یہ امریکہ میں چین کے جاسوسی کے وسیع نیٹ ورک کا ایک مرکز ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینڈیز نے کہا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے محرکات اور حکمت عملی کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اکثر چینی صدر شی جن پنگ کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین کووڈ-19 وبا اور ہانگ کانگ میں چین کے سیکیورٹی کریک ڈاؤن کی وجہ سے تناؤ بڑھ گیا ہے۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ حال ہی میں جب امریکہ نے چینی کمپنی ہواوے پر پابندی لگائی تو اس وقت کئی امریکی ماہرین نے کئی چینی کمپنیوں کو امریکہ میں تجارت کرنے سے روکنے کی تجویز پیش کی تھی۔ امریکہ کی طرف سے ہیوسٹن میں چینی قونصل خانے کو بند کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امریکہ چین تجارتی تنازع کے امریکہ اور چین کی تجارت پر کیا ممکنہ اثرات پڑیں گے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے سیاسی اور اقتصادی ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات چیت کی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ امریکہ اور چین کا جو تنازع اس وقت تک تجارتی تنازع ہم دیکھ رہے تھے چل رہا تھا، اب اس میں ہیوسٹن کا قونصلیٹ بند کر دیا گیا امریکہ کی طرف سے، کنسیڈرنگ کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں چائنا کی طرف سے، اور کاپی رائٹس کے ایشوز ہیں۔ یہ ایسکیلیٹ ہوتا ہوا ایشو کہاں جائے گا؟ یہ تجارتی تنازع کہاں تک جاتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ اور چین کے درمیان جو مشکلات تھیں وہ بہت پہلے کی ہیں۔ سب سے پہلے تو میری ٹائم ایشوز تھے ساؤتھ چائنا سی میں، اس کے بعد پھر چیلنجز کرونا وائرس کے ہو گئے، اس کے بعد پھر ٹریڈ کے ایشوز آ گئے جن کے بیسس پر آرگومنٹ یہ تھا کہ سبسیڈائز کیا جا رہا ہے چائنیز ایکسپورٹس کو، جس کی وجہ سے امریکن جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے۔
تو ان کو سالو کرنے کے لیے بائیلیٹرل نیگوسیشنز ہو رہی تھیں. اب جو ہم اپنے سامنے نیا جو ایشو دیکھتے ہیں جس کی بیسس پر کہ ہیوسٹن میں ان کے کانسولیٹ کو بند کر دیا گیا ہے، یہ ایک میجر ایسکیلیشن ہے. اس ایسکیلیشن کا جو اصل مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اب یہ محسوس کرتا ہے کہ جو ان کے جو چین کے ساتھ کانفلکٹ ہے وہ اب بائیلیٹرل ایشو سے بڑھ کے اسٹریٹجک ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ویلیوز کی بات آ گئی ہے، اور ان ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے اب بائیلیٹرل ڈسکشنز انڈیویجول ایشوز پہ کسی کام کی نہیں ہوگی. یہ اب اوور آل قسم کی ایک ایشو کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اب یہ ایشو یہ آ جاتا ہے کہ اب گلوبل امریکن انٹرسٹ اور گلوبل چائنیز انٹرسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے جو ریسنٹلی دیکھا ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے، جو چائنا امریکہ کا ٹریڈ ایگریمنٹ تھا، اس میں پہلا فیز جو تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، ڈسکشن ایگریمنٹس ہو گئے. اب ٹریڈ ڈیل کا فیوچر کیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے خود ہی فرمایا، یہ درست ہے کہ جو پہلا جو فیز تھا اس میں اصل ایشو صرف یہی تھا کہ جو پرسیوڈ بایس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور چونکہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ چائنیز جو اپنی پروڈکٹ کو سبسیڈائز کرتے ہیں، تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے امریکنز اپنے ٹیرف بڑھا سکتے تھے، اور دوسری طرف چائنیز اپنی سبسڈی کو کم کر سکتے تھے اور امریکن ایکسپورٹس پہ ٹیکسز کو کم کر سکتے تھے. وہ تو ہو گیا، لیکن اس کا اثر لمیٹڈ ہے. جو میجر ایشو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ دونوں کے ٹریڈنگ سسٹمز جو ہیں ان میں کافی فرق پایا جاتا ہے. ان سسٹم کو ختم کرنے کے لیے بڑی وائڈ اسپریڈ اور بڑی ڈیپ لانگ اسٹینڈنگ قسم کی نیگوسیشن کی ضرورت ہوگی، جس کی وجہ سے ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جو اگر کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے اس سسٹم کو استعمال کیا جا سکے گا. ان ادر ورڈز، یہ ایک پیٹرن بن جائے گا جس کو پولیٹیکلی انفلوئنس نہیں ہو سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جہاں تک چین یا امریکہ کی ٹریڈ انٹرسٹ کا تعلق ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ فارمولا استعمال ہوگا. پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ بڑا مشکل کا سوال ہے. وہ اس لیے کہ جب کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نیوٹرلٹی نہیں رکھ سکتے. آپ کو یا تو ایک سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے یا دوسری سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بھی کوشش کریں تو کوئی ملک جو بائیلیٹرل لیول پہ آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، امریکہ ہو یا چین ہو، وہ اپنے انفلوئنس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا. اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جب سے چین اور ہندوستان کی مشکلات پیدا ہوئی ہیں تو پھر یقیناً یہ ہوگا کہ ہندوستان امریکہ کے زیادہ نزدیک آئے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ہر حالت میں چین کے ساتھ زیادہ کوآپریٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو جائے گی. تو یہ کانفلکٹ بڑھے گا اور اس کے اثرات اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنے کی امید کی جاتی تھی. برطانیہ کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر نے اس ماہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں الزام عائد کیا ہے کہ روسی انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے ہیکرز کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری میں مصروف مختلف عالمی کمپنیوں پر سائبر حملے کر کے ان کی معلومات چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ نے مختلف ممالک کے درمیان سفارتی تناؤ میں اضافے کے علاوہ دواساز اداروں میں جاسوسی کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی ہے. برطانیہ کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی رپورٹ کہتی ہے کہ روسی ہیکرز کووڈ-19 کی ویکسینز پر ریسرچ کرنے والے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ کے اداروں پر سائبر حملے کر رہے ہیں. سینٹر کے مطابق APT29 نامی ہیکر گروپ، جسے ڈیوکس یا کوزی بیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس گروپ نے کووڈ-19 کی ویکسین اور اس کی ٹیسٹنگ سے متعلق معلومات چوری کرنے کے لیے کمپنیز کو نشانہ بنایا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس گروہ کا تعلق روسی انٹیلیجنس سروسز سے بھی ہے. یہ گروہ خاص طور سے خفیہ اور رازدارانہ جاسوسی کے لیے جانا جاتا ہے اور ان کے اہم ترین ٹارگٹس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس اور 2015 میں DNC شامل ہیں. 2016 میں DNC پر حملہ ایک دوسرے گروہ نے کیا تھا. یہ گروہ انتہائی اہمیت کی معلومات چرانے میں مہارت رکھتا ہے. So this is the go-to group. This is the most specialized group for high-value intelligence. روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے. ہم ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتے. ہمیں نہیں پتا برطانیہ میں کس نے کیا ہیک کرنے کی کوشش کی. یہ یقینی ہے کہ روس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں.
सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के दौर में होने वाली हैकिंग की ये कोशिश बताती है कि रूस ने खुद अपनी वैक्सीन बनाने के लिए ज़रूरी साइंस और तहकीक में सरमायाकारी नहीं की। रूसी साइंस सिर्फ बरतानिया, अमेरिका और यूरोप से पीछे नहीं है, ये चीन और भारत से भी पीछे है। और पुतिन इसकी तरक्की के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्होंने अपने दौर का पहला हिस्सा मुल्क में चंद उमरा की हुक्मरानी मजबूत करने और तेल और गैस के ज़खायर में इजाफा करने में सर्फ किया और मुल्क के तालीमी सेक्टर में सरमायाकारी नहीं की। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस के रूसी प्रोग्राम के डायरेक्टर ब्रायन विटमोर कहते हैं कि हैकिंग के ये मुबैना हमले मॉस्को की खारिजा पॉलिसी का एक तसलसल हैं। यूक्रेन की सालमियत के खिलाफ स्कैंडल्स हों या बरतानिया में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, रूस की तरफ से ऐसा कोई भी इकदाम हमारे लिए हैरान कुन नहीं होना चाहिए। इस किस्म की साइबर जासूसी सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा। हाल ही में अमरीकी रिपब्लिकन पॉलिसी साजों ने सदर ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो चीन की तरफ से कोविड-19 की तहकीक और दीगर मालूमात चुराने पर इस पर पाबंदियां आयद करें। इस किस्म की कार्रवाई को रोकना बहुत मुश्किल है और ऐसे में खतरा भी कम है। दुनिया भर में साइबर जासूसी में इजाफा हो रहा है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे मुल्कों को एक हद तक इसे तस्लीम ना करने की मोहलत मिलती है। साथ ही उन्हें ऐसे इक़दामात से बचने में मदद मिलती है जो अमेरिका और उसके हामी ममालिक की तरफ से जवाबी कार्रवाइयों में हो सकते हैं। सेंटर की इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऐसा मालूम होता है कि इस हैकिंग ग्रुप को वैक्सीन बनाने से मुतल्लिक तहकीक और बेशकीमत मालूमात चोरी करने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। तातियाना वरोश्को के साथ नुखबत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 के शोज के अलावा दीगर तमाम वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस की फहरिस्त में भारत तीसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 12 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। ऐसे में चंद बड़े शहर इस अचानक इजाफे से निमटने में मुश्किलात का शिकार हैं, जिनमें 2 करोड़ आबादी वाला गुंजान आबाद शहर दिल्ली भी शामिल है, जहां इस वबा से निमटने के लिए सेहत आमा के निज़ाम में बेहतरी की कोशिशें की जा रही हैं। तहम भारत में माहिरीन मुल्क में सेहत आमा के लिए मुख्तस बजट और तिब्बी सहूलियात को नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। दिल्ली की रिहायशी सुहासिनी सूद के वालिदैन को कोरोना वायरस लाहक हुआ तो उनकी हालत ख़राब होने के खौफ से उन्होंने इंतहाई परेशानी में शहर के हस्पतालों से रब्ता किया। आप खबरों में पढ़ते हैं कि बीमार अफराद ने हस्पतालों का रुख किया तो वहाँ बिस्तरों की कमी की वजह से उन्हें वापस भेज दिया गया। मुझे यही खौफ था। हमने कुछ अस्पतालों से पूछा कि वो नए मरीजों को दाखिल कर रहे हैं तो कुछ ने साफ इनकार कर दिया। हस्पतालों में कम गुंजाइश का हल निकालने के लिए दिल्ली समेत कई शहरों में कोरोना के इलाज के लिए आर्जी मरकज़ कायम किए गए हैं। जैसे इस मजहबी सेंटर में गत्ते से बने 10,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल नीम फौजी फोर्स की मदद से कायम किया गया ये मरकज़, जो दुनिया के बड़े तरीन मराकज़ में से एक है। ऐसे में दिल्ली के पास ट्रेन कोचेस, होटल्स और शादी हॉल्स को आर्जी सेहत मराकज़ में तब्दील करने के अलावा कोई चारा न था। भारत में सेहत आमा के शोबे पर इंतहाई कम खर्च किया जाता है। 1,000 अफराद के लिए अस्पताल के 2.5 बिस्तर दुनिया में एक मामूल है, लेकिन भारत में 1,000 लोगों के लिए ये तादाद 0.7 की है। गुंजान आबाद शहरों में कोरोना केसेस में इजाफे और सेहत आमा की नाकाफी सहूलियात की वजह से IT हब बंगलोर समेत कई इलाकों में लॉकडाउन करना पड़ा, लेकिन दिल्ली में एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है। नए कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही ऐसे अफराद में कमी हो रही है जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। इसलिए आज कोविड का इलाज फ्राहम करने वाले अस्पतालों में खाली बिस्तर मौजूद हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि इस आलमी बहरान के 3 माह गुजरने के साथ डॉक्टर्स को बेहतर अंदाज में इससे निमटने का तरीका समझ आ गया है। जैसे सुहासिनी के वालिदैन घर पर ही सेहतयाब हुए। कुछ अरसे बाद हमें समझ आई कि कोरोना के महज 15% मरीजों को अस्पताल और 5% को इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत होगी। तहम इस वबा ने भारत के महंगे प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के अलावा मिडिल और अपर क्लास की खलीज के बड़े फर्क को वाज़ेह कर दिया। जैसे सुहासिनी ने अपने वालिदैन के लिए सरकारी अस्पतालों को बतौर ऑप्शन नहीं देखा। That was never an option. इसका कोई इम्कान नहीं था। सरकारी अस्पतालों के बारे में तसव्वुर किया जाता है कि वहाँ हिफ्ज़ाने सेहत के बुनियादी असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। वहाँ मेरे वालिद को कोई और बीमारी लग जाती।
आया भारत अपने सेहत आमा की सहूलियात में बेहतरी लाएगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद भारत इस मर्ज से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जहां कोरोना केसेस की तादाद 10 लाख होने वाली है। अंजना पसरीचा के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। दिन रात पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिबास में कोरोना वायरस से लड़ते डॉक्टर्स, नर्सें और सेहत आमा का अमला कोरोना वबा की अलामत बन गए हैं। वायरस से बचाव के लिए लाजमी PPE किट पहनना आसान काम नहीं। इसमें हवा का गुजर बिल्कुल नहीं हो सकता और एक दफ़ा पहनने के बाद इसे ड्यूटी ख़त्म होने तक उतारना मना है। कोरोना के लिए मखसूस वार्डों में इन्फेक्शन फैलने के खतरे की वजह से एयर कंडीशनर्स चलाने की इजाज़त भी नहीं होती। शदीद गर्मी के इस मौसम में भारत में मेडिकल अमला किन मुश्किलात से गुजरता है, इसका जायज़ा पेश कर रही हैं वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी। पीपी किट पहनने के 20 मिनट के या 15 मिनट के दौरान ही जो गर्मी की इंटेंसिटी होती है, जो पसीना निकलता है और जो हमारे ग्लासेस के आगे फॉगिंग होती है, जिससे हमारी विजिबिलिटी, हमारी वर्क इफिशियंसी कम से कम 50 से 70% कम हो जाती है। फिर भी हमें पेशेंट को देखना पड़ता है। नर्वसनेस, कभी पाल्पिटेशन होने लग जाता है और पानी नहीं पी सकते, कुछ खा नहीं सकते, वॉशरूम तो जा ही नहीं सकते, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसमें। और पूरे 6 घंटे मास्क लगाना, जब इस मास्क को उतारते हैं ना तो चेहरे पे, हमारे पूरे फेस पे निशान बन जाते हैं, पूरे कान इतने ज्यादा दर्द करते हैं, बहुत ज्यादा। पीपी किट बेसिकली जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है 90 GSM की थिकनेस होनी चाहिए और इट इज अ सिंगल शीट और चूंकि उसकी थिकनेस की वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन की चांसेस नेग्लिजिबल ये नहीं होती हैं, तो इसी की वजह से जो बॉडी हीट बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से इतना स्वेटिंग होता है। मेंटल स्ट्रेस इस बात का होता है कि आप एक ऐसी बीमारी के दरवाजों के अंदर जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया दूर भाग रही है और हम उन्हीं दरवाजों के अंदर जा रहे हैं, उन्हीं पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो रिस्क होता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मोस्टली तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, हम लोगों को अकोमोडेशन दी हुई है होटल्स में, हॉस्टल्स में। We have got a very limited manpower, but everybody is taking it as a challenge, as an opportunity rather than liability. शुरू में जब भी नया बैच जाता है, first 2 days they have got a horrible time. In fact, it is so suffocating sometimes is to come out, breathe outside, take out PPEs kit. So that also we have to accept part of it. ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले you have a healthy breakfast or a healthy meal. पहले रिहाइड्रेट हम खुद को कर लेते हैं। कई मरतबे ऐसे मौके आए हैं, लोगों को वर्टिगो होने लगते हैं, डिजीनेस होता है, ब्लैकआउट होने लगते हैं, बहुत सारे लोग चक्कर खा के गिर भी जाते हैं। जैसे हमेशा होता है कि सैनिक ऐसा काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं देश के लिए, तो इस बार हमें मौका मिला है कि हम भी कुछ देश के लिए करके दिखाएं। ये PPE किट पहने मुझे अभी 15 मिनट भी नहीं हुए हैं और अभी से ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। गर्मी, घबराहट, पसीना और साथ ही साए के साथ चलता ये डर कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। और सोचिए इन डॉक्टर्स और इन नर्सेस के बारे में जिनके लिए 3 महीने से भी ज़्यादा से ये ज़िंदगी का हिस्सा जैसा बन गया है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। 1 जुलाई को शाया होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के एक जायजे के मुताबिक कोविड-19 के बाइस लगाई जाने वाली पाबंदियों की वजह से बैनुल-अक़वामी सियाहत को तकरीबन $30 खरब से ज़्यादा का खसारा हो सकता है। जापान में जब कोरोना वायरस की वबा फैली तो टोक्यो में रहने वाले इंडोनेशिया के एक शहरी के सियाहत से मुतालिक ऑनलाइन शुरू किए जाने वाले कारोबार को भी सख्त झटका लगा। डेविड जॉन को एकदम काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वो दिल बर्दाश्त नहीं हुए, बल्कि नए सिरे से कदम जमाने में लग गए। उन्होंने आमदन का क्या जरिया पैदा किया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आप डेविड नहीं तो आपका हर दिन जादू भरा नहीं हो सकता। वो टोक्यो में अपने घर से दुनिया भर में हर उम्र के फर्द के लिए जादू के करतब दिखाते हैं। मैं सुबह 10 बजे लेबनान में किसी के लिए करतब करता हूँ। अचानक 2 घंटे बाद पैराग्वे में और फिर 3 घंटे बाद लंदन में किसी के सामने करतब दिखा रहा होता हूँ। बुनियादी तौर पर मैं सारी दुनिया में ही घूम रहा होता हूँ। 1 घंटे के सेशन के बाद वो अपने नाजरीन को 1-2 जादू के सादा से करतब सिखा भी देते हैं। अगरचे ये ऑनलाइन है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपके सामने हो रहा हो। ये तजर्बा बहुत दिलचस्प है। डेविड के जहन में फुल टाइम ऑनलाइन जादू के करतब दिखाने का ख्याल कभी नहीं आया। वो IT के शोबे से वाबस्ता थे और 3 साल कबल उन्होंने सयाहत से मुतालिक एक छोटा कारोबार शुरू किया।
गुज़श्ता 12 साल से ऐसे करतब दिखाना उनके लिए महज एक मशगला था। 43 साला डेविड जापान में टूर गाइड थे, लेकिन कौन जानता था कि एक वायरस सब कुछ बदल देगा। रातों रात सैरो सियाहत खत्म हो गई। लगता था कि ये सब चंद माह तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए ये महसूस हुआ कि इस साल तो कुछ भी मामूल पर नहीं आएगा। अप्रैल में डेविड ने अपने जादू की परफॉर्मेंस का इश्तहार एक वेबसाइट पर डाला और तब से वो 100 से ज्यादा मुल्कों में शायकीन के लिए ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं। उनके ज्यादातर नाजरीन अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। लोगों के लिए ये शो इस गैर यकीनी सूरत हाल से छुटकारा पाने का एक जरिया है। I'm staying at home still and I'm in मैं अकेली एक बड़े से घर में रहती हूँ, तो इस तरह मैं अकेलेपन से छुटकारा हासिल करके लोगों के साथ राब्ते में रह सकती हूँ। Abracadabra। ऑनलाइन शोहरत में इजाफे के साथ साथ डेविड को बढ़ते हुए मुकाबले का भी सामना है। डेविड जॉन, जो गुज़श्ता 20 सालों से जापान में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, जापानी रस्म व रिवाज को अपने शो में जम करके कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं। सियाहत मेरा दूसरा शौक है। मैं इसे भी इसमें मिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ मुनफरिद दिखा सकूँ। जब लोग मेरे प्रोफाइल को देखते हैं तो समझ आते हैं कि वो मुझसे जादू के अलावा कुछ और भी सीख सकेंगे। आजकल डेविड अपने जादू के जरिए ही लोगों को जापान से मुतारिफ करवा रहे हैं। ताहम वो पुरुमीद हैं कि एक दिन जब यहाँ से वबा का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा तो वो अपने सयाहों को जापान की सैर के जरिए फिर से मशहूर करेंगे। बीना मुब्तादी के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या कभी आपने काम करवाने के लिए अपना डिजिटल क्लोन बनवाने का ख्वाब देखा है? तो फिर आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में टेक्नोलॉजी की एक कंपनी शायद आपकी मदद कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन का मिशन हर एक को अपना डिजिटल क्लोन तैयार करने में मदद फराहम करना है। चलिए आपके तजस्सुस को कम करने के लिए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हेलो, मैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा का एक डिजिटल वर्जन हूँ। अनकरीब आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जा सकूँगा। मैं आपके फ़ोन में मौजूद हूँगा और आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हूँगा। दीपक चोपड़ा मुतबादिल तरीका इलाज के माहिर हैं और अपनी किताबों और टीवी पर आने की वजह से लाखों अफराद तक पहुंचते हैं। लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो आप कभी भी उन तक नहीं पहुंच सकते। डिजिटल दीपक सीरी या एलेक्सा की तरह एक मसनूई ज़हानत का आला है, लेकिन इसमें उनकी शख्सियत का रंग नुमाया है, क्योंकि दीपक चोपड़ा ने खुद इसकी तश्कील की है कि वो इस तरह बातचीत और रहनुमाई करता है जैसे वो खुद करते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि उनका तैयार करदा डिजिटल दीपक मसनूई ज़हानत की मसरूफ दुनिया में एक मिसाल कायम करेगा। हमारा मिशन है कि हम हर एक को अपनी अपनी मसनूई ज़हानत देकर एक बेहतर दुनिया तामीर करें जो सिर्फ हमारे लिए काम करे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। 7 अरब की आबादी के लिए अपना अपना डिजिटल जुड़वा। आपका मसनूई ज़हानत वाला जुड़वा दुनिया में जाके वो चीजें या लोगों को दरियाफ्त कर सकेगा जिनके लिए आपके पास वक्त नहीं है और ना ही उन तक रसाई हासिल है। नौजवानों की एक कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने वफूद के साथ गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे से सीखने वाली मसनूई ज़हानत की नुमाइश की। मेरा नाम गियोम हयाक किम है। मैं शमाली कोरिया से हूँ और मैं अपने मुल्क में जमहूरियत फैलाने का अज़म रखता हूँ। ये एक शर्म की बात होगी कि अगर दुनिया के सिर्फ चंद लोगों को इंतहाई ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक रसाई हो। शायद अब हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हम वाकई इसको बदलना चाहते हैं। सोशल मीडिया चलो एक तरफ हटो, जाती मसनूई ज़हानत आ रही है। आप अपने AI के साथ क्या करेंगे? मैट डिबल के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का View 360 शो। मुझे फाइजा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल वीकेंड।